अदिति बाबू आप दीजिए तो और छोटा छोटा एक एक चीज वाले सब है ना। इसको I go to Patna. Would you change it in all the structures of sentences? Negative, interrogative, WH. Would you change it? Sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Negative में होगा I not go to. I not. You are wrong. Next one. Firstly, we will look Sir, I that do not. which form of verb has been used. I do not. Go to Patna. कौन सा verb का form यहाँ पे है? V1 है ना? V1. V1 के लिए क्या आता है? Good morning, sir. Very good morning. ये V1 के लिए क्या आता है? भूल गए? Do, did. What will be the auxiliary of the sentence? इस सेंटेंस का auxiliary क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? Auxiliary. I do not go to Patna. If you want to change in negative, interrogative, WH, interrogative negative, WH negative, then you need firstly auxiliary verb. I have already taught you about the auxiliaries. Auxiliaries are as well as known as helping verb. Auxiliary verb and helping verb are same. Then what will be the auxiliary here? I do not go to Patna. Isn't it? है ना? Yes, sir. I do not. What will be the interrogative? Do I go to Patna? I go to Patna. Do Question mark. I Go to Patna question mark. Question mark. बिल्कुल सही जवाब. What will be the WH? When I go to Patna. Yes. If you are using place, then you can use here when. When are you in a when? Do you go to Patna? Clear? Interrogative negative? Sir. Sir, Yes. place के लिए तो where भी यूज होता है. When ऐसा नहीं, सब when भी कर सकते हैं, where भी कर सकते हैं, why भी कर सकते हैं, how भी कर सकते हैं. इसके लिए कुछ हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना. when भी सेट हो रहा, where भी सेट हो रहा, why भी सेट हो रहा, how भी सेट हो रहा. इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनाएंगे हम लोग? सर वहाँ यू की जगह आई Do I not go to Patna? Do I not go to Patna? Question mark. Yes, yes. When do I? We cannot change here pronoun, है ना. इंट्रोगेटिव नेगेटिव. Do I not go to Patna? Do I not go to Patna? Do I not go to Patna? बिल्कुल. अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे. Okay. Are you ready? Yes, sir. Okay. सर इसको लिखना था जो अभी आप दिखाए थे. नहीं 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 लिखना नहीं था. Ishita, question goes to you. Question goes to you. Yes, sir. You studied on time. What will be the negative here?
You do not study on time. Wrong answer. Your answer is wrong. Next, this question also goes to Aragya Sinha. Aragya, bolo babu. Sir. What will be the answer? You have studied on time. You have to change into negative. You study time. Wrong answer. Sir, may I? Next, Utkarsh Naman. Yes, sir. Tell me the answer. Right answer. Sir, you not studied on time. Wrong. Next, Satyam. What will be the right answer of this question? You have to change into negative. Satyam, listening me. not study time. Ankit, Yes, sir. tell me the right answer. You was not studied on time. Wrong answer. Sir, may I? Who? What's your Sir, name? Ronak. Ronak, tell me. Sir, Raj. Yes, Ronak, tell me the right answer. You didn't study on time. Yes, your answer is right. Just look at here. First, if you don't have auxiliary verb, did you find here auxiliary verb? Answer is no. If you have not auxiliary verb, you have to go in B form. आपके पास यदि auxiliary verb नहीं है तो किसके पास जाएंगे? B2 के, जो हमारा मेन वर्ब दिया है उसके पास. जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन जब करते हैं और हमको इस प्रकार से है 6 3 3 9, अब हमारे यहाँ पास नहीं रहता है तो हम इसके पास जाते हैं तो इस हमारा 13 बनता है. उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या है, जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा हमारे पास तो जाएंगे हम लोग मेन वर्ब के पास. मेन वर्ब को देखेंगे क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, क्या है. तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि V1 के लिए डू आता है, V2 के लिए डिड आता है, V5 के लिए डज आता है. और बाकी V3 अकेले डायरेक्ट आ ही नहीं सकता है, V4 डायरेक्ट आ ही नहीं सकता है. जब भी V3 आएगा तो इसके साथ हैज हैव ऐड आएगा. हैज हैव हैड, बिना हैज हैव ऐड के V3 आ ही नहीं सकता है. उसके बाद बिना बी फॉर्म का V4 आ ही नहीं सकता. तो हमारे पास जब हैव फॉर्म रहेगा और बी फॉर्म रहेगा तो उसके लिए तो हमारे पास टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हैज हैव हैड दिया रहेगा और बी फॉर्म में इज एम आर बाज और बर दिया रहेगा. उसके लिए हमको मेन वर्ब के पास जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग आसानी से उसको नेगेटिव बना सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है इसलिए हमको जाना पड़ेगा मेन वर्ब के पास. देखो, सब्जेक्ट के बाद या तो डायरेक्ट आ सकता है B1, या तो डायरेक्ट आ सकता है B2, या तो डायरेक्ट आ सकता है B5. ये बात पता चली. Yes, sir. सब्जेक्ट के बाद टेंशन ही नहीं है हमारे पास, जब भी आएगा B1 B2 B5. आप और कोई डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हो आई गोइंग, आई गोन, इस प्रकार से कभी नहीं हो सकता. ठीक है, जब भी होगा V1, जब थर्ड पर्सन रहेगा सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम तो V5, और भी कोई सब्जेक्ट रहेगा तो V1 V2 सभी के साथ हो सकता है. आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ B2 का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसमें V5 में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और V1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़ करके बाकी सभी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लुरल, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लुरल, थर्ड पर्सन का सिर्फ प्लुरल, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ V1. जैसे देखो, एक एक चीज को माइंड में हम लोग सेटअप करते चलेंगे. ठीक है ना, आई के साथ हम लोग B1 लगा सकते हैं, बी के साथ हम लोग B1 लगा सकते हैं, यू के साथ हम लोग B1 लगा सकते हैं, लेकिन ही अगर रहेगा सी, एक बार और इसको भी देख लेते हैं.
दे के साथ भी हम लोग V1 लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, नेम आ गया। नेम में हमारा सिंगुलर नेम होना चाहिए, ना कि नेम हमारा प्लूरल होगा। इसके साथ जब यूज करेंगे V5, और सारे के साथ हम लोग V2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको आसानी से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ईडी लगा हुआ है, और ईडी बस दो ही जगह लगता है, या तो V2 रह सकता है या तो V3 रह सकता है। ईडी हमारा तभी आ सकता है जब वो हमारा V2 हो सकता है या V3 हो सकता है, लेकिन V3 तभी होगा जब हमारे पास हैज हैव हैड इसके पहले आएगा, तभी हम इसको ईडी वाले को समझ सकते हैं कि ये V3 है। फिर से एक बार समझना, ईडी हम तब ईडी को हम V3 तभी समझ सकते हैं जब इसके पहले हैज हैव हैड आएगा, नहीं तो हमको ईडी को सिर्फ समझेंगे क्या कि जब भी होगा तो सिर्फ V2 होगा, V1 कभी हो नहीं सकता। V5 की पहचान क्या है, उसमें एस या एस लगा रहेगा। V2 की पहचान ईडी रहेगा, या फिर और भी ये तो हमारा रेगुलर वर्ब होता है, ठीक है ना, जिसके लास्ट में डी लगा रहे, ईडी लगा रहे, आईईडी लगा रहे, इसको हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और जिसके अंत में हम लोग डी ईडी नहीं लगाते हैं उसको हम लोग इरेगुलर बोलते हैं। जैसे गो बेंट गॉन, कम केम कम, थ्रो थ्री थ्रोन, ये जितने सारे वर्ब है जिसमें हम लोग डी ईडी का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सारे के सारे वर्ब हमारे इरेगुलर कहलाते हैं। एंड इफ यू आर यूजिंग डी ईडी आईईडी इन द लास्ट ऑफ एनी वर्ब, दैट विल बी द रेगुलर वर्ब। तो हम लोग इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। डी और ईडी को जैसे ही हमारे पास आ गया ईडी, हैज हैव हैड नहीं है, हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये V2 है। और सर बताया है कि V2 के लिए ऑक्सिलरी हमारा क्या आता है, डिड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यू डिड। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े होंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यू डिड नॉट स्टडी ऑन टाइम। सभी को समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट टाइम Yes, पूछेंगे, sir. आप नहीं बताओगे सर बहुत V2 में V2 चेंज हो जाएगा V1 में, निगेटिव में। हाँ देखो, आप इतना जान लो, डू अगर कहीं भी लिखा हुआ है, डैज अगर कहीं भी लिखा हुआ है, और डिड यदि कहीं भी लिखा हुआ है, तो उसके बाद यदि आपको वर्ब का प्रयोग करना है तो सिर्फ और सिर्फ V1 ही प्रयोग होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो, सी डज नॉट स्टडीज, ऐसा नहीं, सी डज नॉट स्टडी। जब भी डू डज डिड आएगा उसके बाद V1 फॉर्म में आएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं प्रयोग करना, कोई V2 कोई V3 कोई V4 की V5 नहीं, only base form that is called V1। क्लियर? Yes. और किसी को Yes, कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है ना, आप जिसका भी नाम लेंगे आपका आंसर आना चाहिए राइट, नहीं तो हम फोन में अंदर आकर के पिटाई करेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है? नो सर। चलो मम्मी पापा को बुला सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को वहां पे बुला सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं बताया, अभी हमने समझाया फिर भी नहीं बताया, तो आप पिटा सकते हो ना, पिटा सकते हो कि नहीं? यस सर। तो हुआ ना जी, योर Yes. टीचर इज लाइक योर पेरेंट्स, आई एम टेकिंग केयर अबाउट योर, एंड योर पेरेंट्स इज ऑल्सो टेकिंग केयर योर्स, जस्ट सेम ईयर। हम पीटे ही अगर आपके पेरेंट्स पीटे, बात तो बराबर ही, दोनों तो आपको सुधारना ही चाहते हैं, दोनों तो आपका भविष्य उज्जवल ही बनाना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर यू आर प्रेजेंट एट योर गार्जियन एट योर टीचर। आप क्लास में रहते तो बहुत बहुत प्यार करते हैं बच्चे को, नहीं बताने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, और फिर इसके बाद हम फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और आपका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। और अभी भी किसी को डाउट है, कुछ भी आपको छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो, आपको कभी नहीं सोचना है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर पूछेंगे तो सर क्या बोलेंगे, वैसा वैसा। आपको जितना बेसिक चीज पूछना, जितना छोटा चीज, जितना आपको डीप कंसेप्ट चाहिए, सब कुछ देंगे। आप बस जो भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप एक बार पूछिए। V3 और V4 में क्या यूज होता है? V3 और V4 में देखो, V3 तभी आएगा जब हैड आएगा, V4 तभी आएगा जब बी फॉर्म आएगा। बी फॉर्म मीन्स क्या लिखा है, इज एम आर बाज वर, तभी उसके बाद हमारा V4 आता, ऐसे हमारा V4 नहीं आता। V4 को पहचानने का क्या है, उसके लास्ट में आईएनजी लगा रहेगा, है ना। V3 तो हैज हैड के बाद ही आता है, और ऐसे फिर
वॉइस बनाओगे तो वॉइस में, पैसिव वॉइस में सभी में V3 होता है, उसके बारे में अभी जाना ही नहीं। अभी हम लोग सिर्फ एक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। आप नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम क्वेश्चंस देते हैं। शिवम बाबू वीडियो ऑन कीजिए। शिवम, अदिति बाबू ऑन कीजिए। शैतान है सब। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत रहे बाबू तो जरूर पूछना। समझा अगस्त्या? अगस्त्या बाबू? ओके सर। हाँ बाबू, मन से पढ़ना बाबू, इंग्लिश ऐसा पढ़ो कि पूरा इंडिया में आप छा जाओ एकदम, आपसे ज्यादा कोई नहीं जाने। सर हो गया। मे आई इरेज, हटा दे। सर। यस सर। यस सर। ये सारे नोट कर लिए है ना? नो सर। डू इट Yes, फास्टली। ओके, जो नहीं किया उनको करने दीजिए। सर ये लिखना है। यस। कहाँ हो आप? ये सब बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसको आप माइंड में सेटअप कर लिए ना, तो आपका लगभग सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस आपका अगर करेक्ट होने लगेगा, फिर आपका साइंस अच्छा हो जाएगा, एसएसटी अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश तो अच्छा हो ही जाएगा। बच्चे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप जब आंसर लिखते हो ना, तो उस आंसर में सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आना चाहिए ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं बच्चे, और इसी के कारण आपका आंसर सही भी रहता है, स्टोरी आप जान भी रहे हो, आंसर आप जान भी रहे हो, फिर भी आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। आपको यदि ये पता हो जाए किसके साथ हम B1 लगाएंगे, किसके साथ B2 लगाएंगे, किसके साथ B3 लगाएंगे, फिर आपका सारा सेंटेंस ही सही चला जाएगा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपके पास कम भी है, फिर भी अगर एग्जामिनर देख रहा है कि योर ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर सेंटेंसेस आर बिल्कुल क्वाइटली करेक्ट, then you will get a very good marks. During checking my copies, I also look into about the structures of sentences. Have you written right or wrong? The way you are writing, that is correct or incorrect. Firstly, you will get marks on the basis of your structures. Then what is the concept in your mind? It doesn't matter. It matters. Okay? Would I erase it? No sir। Yes. sir। What are you doing? Just do it Yes, fastly. sir. Who has not done? Yes sir। Firstly, try to make your sentences correctly. And your sentences are depending on the concept of verb. If you know about verb very well, all the topic will be very easy.
Once again, I am giving you a question. She cooks breakfast. Just be ready, everyone. I am going to call your name and ready to give your answers. Anuj Saxena. What is the right answer? Anuj Saxena, where are you? Yes, sir. Just tell me the right answer. Your face is not viewing. Just come Sir, on in front. negative. I'm not able to watch your face. उसके बाद सर in negative. Yes, in negative. Sir, Sir, मैं sir, she didn't cook breakfast. She didn't cook. Your answer is 100% wrong. Aditri Das, Swati Kumari. Just come on your video. Swati, tell me the right answer. What is the negative of the sentence? Aryan, Yes, sir. where are you? Come on video. She Swati, does not cook the breakfast. Aditri, yes, sir. tell me the right answer. She didn't cook breakfast. I am not able to watch your video. Just come on. Move your camera on your face. So can I tell? Yes. Sir, she is not cooking breakfast. Sir, This may I? answer is very, very wrong. Just look. Sir, once may I? again. Okay. She does not cook breakfast. Yes. Very good. Just look here. ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है यहाँ पे? नहीं दिया हुआ है. हमने क्या बताया? जब भी आपको ऑक्सिलरी निगेटिव जैसे ही आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव जैसे ही बनाना है, WH बनाना है, आपको क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए तो चाहिए. आप कहाँ से लाओगे? आप सोचो. आपके पास जानकारी है, नॉलेज है, आप जानते हो, पहले प्रैक्टिस किए हो, सर बताएं. आप अगर पढ़ने के दौरान आपका ध्यान था तो आप बताओगे. सबसे पहले हमको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए. नहीं दिया हुआ, हम कहाँ जाएंगे? मेन वर्ब के पास. मेन वर्ब कौन होता है? जो हमारा V1, V2, V3, V4, V5 होता है, वो हमारा मेन वर्ब होता है. इसके पास हम आ गए. सबसे पहले हम देखेंगे V1 है, V2 है, V3 एस लगा हुआ है. हम आंख बंद करके बोल सकते हैं ये क्या होगा? V5 होगा. सर बताए थे कि जब भी V5 रहेगा उसके लिए ऑक्सिलरी क्या लिखना है? डज. V5 के लिए ऑक्सिलरी क्या होता है? डज. सब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? सी. ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डज. डज लिख दिए. हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नॉट. सी डज नॉट. हमने ये भी बताया कि जब भी डू डज डीड है उसके बाद हम जब भी यूज करेंगे V1 यूज करेंगे. कुक्स नहीं बल्कि हम क्या हो जाएगा? कुक. और जो हमारा ऑब्जेक्ट तो सेम होगा. ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा. Sir, आप लोग सही. Sir, I have told also the same. Yes. Some of the students are saying the right answers. Don't worry. But most of the students are not understanding very well. Just ask your queries if you are facing any problems. आपसे पूछ रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हो. आप जब आपसे जब हम पूछते हैं तो आप बता नहीं पाते हो, ना पूछते हो आप. बहुत गंदी बात है. अब इसका इंट्रोगेटिव तो बता सकते हो. जिसका नाम लेंगे आप बता देना. इस बार मत हमको निराश करना. श्रुति. What is the interrogative of this sentence? Shruti.
आराध्या, लेफ्ट कर गए वो। Yes, sir. tell me the interrogative of the sentence. Does she cook breakfast? Very good. The last marks will be interrogative marks is also Question mark. yes. Agastya, just tell me the WH. Why did she not cook breakfast? Why did? How can you use did? did कैसे आप यूज करोगे बताओ, आप क्यों यूज किया did? आपने क्या समझा, आप क्यों ऐसा किए बताओ? आपके पास तो यहाँ पे ऑक्सिलरी ऑलरेडी डज है, तो फिर आप डिड के पास कैसे जा सकते हो? Why does she not cook breakfast? नॉट क्यों लगा रहे हो? WH में नॉट लगता है क्या? WH एंड नेगेटिव हम बोलते तब ना आप लगा सकते हो नॉट. I asked you only WH. Just tell me the word, only WH sentence of this sentence. Why does she cook breakfast? Why does she cook breakfast? I am giving you 10 questions, okay? After that, Sir, we will question move mark. on. Sir, question. Yes, yes, question mark. I am giving you 10 questions. Just transform all the sentences. After that, we will start a new chapter that will be the noun and number, okay? जो भी टॉपिक पढ़ो उसको अच्छे से क्लियर कर लो बस. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे तो काफी अच्छा होगा. सेंटेंस अगर सबका क्लियर है तो फिर आगे का टॉपिक आसानी से क्लियर होता चला जाएगा. क्योंकि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ये तीनों की इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए आपके पास. जस्ट चेंज इट वेरी फास्टली एवरीवन. Sir, into negative only. Negative and interrogative, only two. सर ऊपर वाला 2 होगा ना? क्या बोले? सर क्वेश्चन 2 फिर क्वेश्चन 3 ना? सर ये सबको बनाना है? जी, फास्टली, बस 2 में चेंज करना है. ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बस. Only 5 sentences. नहीं रुक जा, थोड़ा सा एक दो और देख ही देते हैं. डू इट फास्टली. आपको 7 क्वेश्चन 7 मिनट में आंसर देने. वैसे तो 5 मिनट्स भी इनफ है. सर कॉपी में बताना या ऐसा आंसर? आप कॉपी में बनाओ, हम आपसे पूछेंगे ना आप क्या बनाए. ओके सर. अनुज बाबू फ्रंट कैमरा कीजिए. अनुज, शैतान इस सब है.
अब बिट्टू बाबू वीडियो ऑन कीजिए। 1 मिनट, ये सब चैन नहीं लेने देगा। शिवानी, just on your video. शिवम, श्रुति, have you done? Yes, sir. No, sir, not done. No, sir, not Aradhya, done. Yes, sir. have you done? No, sir. Do it fastly. What are you doing? Wasting your time. Excuse me, sir. Yes. सर किसी भी वर्ब के पीछे एस या फिर ईएस होता है तो वो V5 होता है। Yes. सर Always. थैंक यू सर। Hmm. Sir, please tell me the Hindi of question number 6. Question number 6. You have come on time. आप समय पर आए। आप समय पर आ चुके हैं। सर व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 5? Question number 5. My guardian cares me very much. मेरे अभिभावक बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, है ना? ये सेंटेंस सही है ना जी? करेक्ट और इनकरेक्ट इन योर लाइफ? Yes, sir. Sir, correct. May I ask? Done, sir. Are you ready, everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Just I am going to call your name. Kausal, tell me the answer of question number 5. My guardian does not cares me very much. Cares होगा, फिर बताओ। डज लगा रहे हो, फिर cares क्या लगेगा? My guardian does not care me very much. Okay. Very good. What is the interrogative? Does my guardian cares me very much? फिर cares लगा रहे हो आप। Yes, sir, care. यही तो हमको सुधारना है ना, यही तो बच्चे गलती करते हैं ना आंसर लिखने टाइम। चलिए, नाउ क्वेश्चन गोज टू आराध्या सिन्हा। कम ऑन,
The answers of question number 7. Negative. Do it fastly, don't waste your time. आप बता सकते हो यस या नो बोलो. प्रज्ञा. No, What are sir. you doing? No. आप क्यों नहीं बता सकते? आप बताओ, आपको क्या नहीं समझ में आया? बताओगी तब ना. अब संडे का इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो, आप कुछ नहीं सीखोगे तो तुम्हारा तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा दुखी की बात है, और तुम्हारे लिए तो खैर होगी. बताओ आपको क्या प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में. बताओ आप क्या नहीं समझ पा रहे हो. She can't speaking. सी कांट स्पीक चाइनीज, है ना. हमारे पास जो ऑक्सिलरी होता है ना, ये देखो ये मॉडल यहाँ पे भ भी है, यही मॉडल ऑक्सिलरी जिसको हम लोग बोलते हैं. बस इसके बाद ये तो सबसे सिंपल वाला है. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव लगा दिए, हो गया. सी कैन नॉट स्पीक चाइनीज. आप इसका बताओ इंट्रोगेटिव क्या होगा? जल्दी बताओ ना. आप गलत ही बताओगे ना, हम बताएंगे ना सही. आप बताओ जल्दी सा. बोलो बोलो. आप 1-2 के बच्चे हो, बताओ आप ऐसे कर रहे हो. जल्दी सा बताना चाहिए ना, जो भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोग. इंट्रोगेटिव क्या होगा बताओ. Can she speak Chinese? तो फिर आप जानते हो, फिर क्यों नहीं बताते हो? क्यों टाइम अपना वेस्ट करते हो इतना? कैन सी स्पीक चाइनीज, और लास्ट में कौन सा मार्क्स? Question mark. यस, ये हुई ना बात. चलिए, क्वेश्चन गोज टू नेक्स्ट वन. उत्कर्ष, नमन. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4. Okay, sir. Okay. Sir, negative. The earth do not move. द अर्थ डू नॉट मूव्स. बताओ आप यहाँ पे कौन सा वर्ब है, आप हमको पहले ये बताओ. मूव्स हमारा कौन सा वर्ब है, पहले ये बताओ हमको. कौन सा वर्ब का फॉर्म है? V5 है, डज लगेगा. B5 हम जिनसे पूछेंगे आप वही बताएंगे, ठीक है ना. हम सबसे पूछ चुके हैं, सबको समझा चुके हैं. अब जिससे पूछेंगे, चूंकि 1 by 1 तो हमको केयर करना है ना. अब बताओ ना मनु, मूव्स हमारा कौन सा वर्ब फॉर्म है? Sir, verb 5. V5 है ना. तो V5 के लिए हमारे पास कौन सा है जो यूज करते हैं बाबू, बताओ जरा. Sir, does. डज यूज करते हैं ना. तो आप क्या यूज किए थे? Sir, do. क्या लगा, क्या यूज करना चाहिए आपको? The earth does not move. द अर्थ डज नॉट Move. मूव. क्या, या फिर मूव्स होगा? Sir, move. मूव होगा. डज के बाद हमेशा क्या आएगा? V1 आएगा. तो द अर्थ डज नॉट मूव. आप इसका इंट्रोगेटिव आप क्या बनाओगे बताओ. Why earth does move? इंट्रोगेटिव में आपका WH नहीं आता, ठीक है ना. जब हम आपसे बोलेंगे WH तब आपको भाई लगाओगे और वेन लगाओगे. आप सिर्फ ऑक्सिलरी पहले आता है ना. इंट्रोगेटिव का हम यहाँ पे क्लोज इंडेड बोल रहे हैं. इंट्रोगेटिव हम 2 टाइप्स का बताए थे, एक क्लोज इंडेड, एक ओपन इंडेड. क्लोज इंडेड बिगिनिंग विथ ऑक्सिलरीज, और ओपन इंडेड बिगिनिंग विथ WH. बताया ना. बताओ आप इसका ऑक्सिलरी ये है. इंट्रोगेटिव क्या होगा बताओ. जल्दी बताओ. अरे गलत बताओगे, हम तुम्हें समझाएंगे ना. जल्दी करो ना. आपके पास तो हम पहले ही उतना समय दे चुके हैं ना. आप कैसे समय दे सकते हैं? Sir, जल्दी करो. why earth नहीं लगा सकते? वाई हमारा ओपन इंडेड हो जाएगा ना, WH हो जाएगा ना. आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब पहले करना है. क्लोज इंडेड में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पहले करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ये हमारे पास डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे हमारे होते हैं ऑक्सिलरीज. इसको आपको सबसे पहले करना है. Sir, I can say. ओके, टेल मी. Sir, I can. Does the earth move? डज द अर्थ. Does the earth move? उसके बाद क्वेश्चन मार्क है ना.
यस सर। चलो आप सभी लोग मैच कर लेंगे। रोहन वर्कड हियर, रोहन डिड नॉट वर्क हियर, ठीक है। उसके बाद रोहन वर्कड हियर का नेगेटिव हो जाएगा, रोहन डिड नॉट वर्क हियर। उसके बाद इंट्रोगेटिव मैच करेंगे, डिड रोहन वर्क हियर। मैच हो गया सभी का, क्वेश्चन मार्क। यस सर। जिसका भी जो गलत होगा सुधार लेंगे। दे सर आर प्लेइंग फुटबॉल। यस। आपने बोला रोहन डू नॉट वर्क हियर, वो डिड नहीं था। नॉट, डिड नॉट, डू नॉट नहीं। ओके सर। चलो इसमें दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसमें तो हमारे पास ऑक्सिलरीज है, टेंशन ही नहीं है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इंट्रोगेटिव बना देंगे, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। मैच हो गया सभी का। यस सर। चलो आगे, द अर्थ मूव्स, द अर्थ डज नॉट मूव। उसके बाद इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डज द अर्थ मूव, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, माई गार्जियन केयर्स मी वेरी मच, तो माई गार्जियन डज नॉट केयर मी वेरी मच। उसके बाद इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डज माई गार्जियन केयर मी वेरी मच, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यस सर। समझ पा रहे हैं। 6 नंबर, यू हैव कम ऑन टाइम, यू हैव नॉट कम ऑन टाइम। और इंट्रोगेटिव में हैव यू कम ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7, तो हम सर लोग व्हाट इज द इंट्रोगेटिव ऑफ नंबर 6? 6, यू हैव नॉट कम ऑन टाइम। देखो कम हमारा V1 होता है, कम केम हमारा V2 होता है, और कम ही हमारा V3 भी होता है, ठीक है। V1 और V3 दोनों सेम होता है, बट हम लोग जैसे ही हैव आ गया ना, तो हैव के बाद जब भी आता है तो V3 ही आता है, हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। जब भी आप हैव के बाद अगर वर्ब का प्रयोग कर रहे हो तो V3 आएगा। आप ऐसा नहीं, हाँ अगर वर्ब नहीं यूज कर रहे हो तो बोल सकते हो आई हैव अ पेन, लेकिन अगर वर्ब के बाद हैव के बाद अगर कोई भी आप वर्ब यूज करना चाहते हो, जब भी होगा V3। आई हैव ओपनड, आई हैव क्लोज्ड, आई हैव टॉट, आई हैव स्टडीड, आई हैव गॉन, आई हैव कम, ओके। और बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सारे लोग सर। मैच कर लिए ना, आगे बढ़ा जाता है। अब टॉपिक चेंज करें। यस सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज योर नाउन नंबर। नाउन तो हम लोग को पता होगा, हम लोग जाने हैं डिफिनेशन नाउन का, है ना। अब इसी नाउन को हम लोग दो भागों में, इस नाउन को हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा दो भागों में बांटेंगे इसको, फर्स्ट सेकंड। किस बेसिस पे, तो एक हमारा होगा सिंगुलर और एक हमारा होगा प्लूरल। सबसे पहले नंबर के बारे में हम लोग जान जाएंगे। नंबर क्या होता है, when a noun is used, when a noun is used
to show one or more than one. It needs to add words. This form is called number. There are two types of number. First is singular number. इसके बारे में जान जाएंगे हम लोग. Then noun denotes one in number. It is known as singular number. Pen, book, school, boy, girl. ETC का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है क्या? एक्सेट्रा. स्पेलिंग पता है क्या? ETC नहीं, किसी को पता? ETRA. ETC बोलो आगे. ETC ETRA. ETRA. ETCETERA ये होता है ना, जिसका हमारा हिंदी क्या होता है? इत्यादि. सर आदि. इसी को हम लोग आदि भी बोलते हैं. आप लोग इसे लिख लिए क्या? नो सर. नो सर. Write it fastly. Bittu, यस सर. on your camera. श्रुति अभी तक कभी ऑन नहीं कीजिए कैमरा, लगता है तुम. Sir. सर नेटवर्क प्रॉब्लम है. Okay. Sir. Yes. I had asked a question you two on WhatsApp, so please explain it. What is your question? I had been sad since morning. I had been sad since morning. Yes. क्या पूछना है इसमें? Explain इसको करना कि past perfect में कैसे होगा. पास्ट परफेक्ट में कैसे होगा? I
आप हमसे क्वेश्चन पूछे थे क्या? व्हाट्सएप पे नहीं भेजे थे सर, तो आप भेजे पास्ट अच्छा 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 परफेक्ट पैसिव फॉर्म। अच्छा अच्छा। आई माने सर जी जॉन। हैड बीन सेड सिंस मॉर्निंग, यही था ना? यस सर। पहले आप समझना, हैड हमारा किस में आता है? सैड सैड सेड, सैड नहीं, सैड सैड उदास। यही ना, आई हैड बीन सेड, यही ना है जी। अब सैड देख, सर उदास। ए से डी सर, ए से डी। आई हैड बीन सेड, अच्छा ये है ना, आई हैड बीन सेड सिंस मॉर्निंग। यस सर। देखो तब तो यहाँ पे चांस बन जाता है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी। रुक जाओ एक मिनट, आप क्वेश्चन क्या दिए थे? क्या जी नाम है, नंबर क्या है तुम्हारा? व्हाट्स योर मोबाइल नंबर? सर 62 62 0 44 44 76 003। 76। यस सर। अरे तो तुम, डन सर। तुम्हारा हेलो, यस सर। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा शिवम। शिवम। तुम्हारी यस सर। सिस्टर हमसे पढ़ी है क्या? यस सर जी जॉन। शिवानी के भाई हो तुम? यस सर। अरे तरह का तो बोलना चाहिए, हमको वही लगा कि शिवानी के व्हाट्सएप पर आया हुआ था ये क्वेश्चन, हमको लगा कि तुम वो पूछ रही है। अच्छा रुको, तो यहाँ पर देखो क्या है बाबू, डन सर। यहाँ पर यह जो सैड है, अगर यहाँ पे हमारे पास वर्ब का तो पता नहीं है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस में, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या कंडीशन है कि अगर आप हैड बीन था ना, अगर हैड बीन के बाद अगर V3 होता तब तो ये चल जाता पास्ट परफेक्ट में। यदि हैड बीन के बाद V4 होता तो ये हमारा चल जाता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये यहाँ पर अगर ऐसे ही अगर पैसिव में ले जाएंगे तब ये हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। ऐसे अगर हम लोग एक्टिव में अगर सिंपली हम लोग जानना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों का कंडीशन ये है। पैसिव में यदि हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, चलो भाई सिर्फ हमको एक्टिव के बारे में ही सोचना है, तो आप इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डाल सकते हैं। पता चला? यस सर। ठीक है, हमारे पास वर्ब यहाँ नहीं ना है, अब वर्ब से ही हमारा टेंस का पहले पता चलता है। हम लोग टेंस का डिफिनेशन क्या याद किए थे? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। हमारे पास तो वर्ब है नहीं, तो हमको जज करना है किसके ऊपर? ऑक्सिलरीज के ऊपर। तो ऑक्सिलरीज में हमारा क्या है? हैड है, हैड जाता है पास्ट में, ये तो फिर ये तो कंफर्म है कि पास्ट टेंस का है। लेकिन पास्ट टेंस में यदि बिन का हैड के बाद अगर बिन लाते हैं तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव बन जाता है। और अगर पैसिव के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ एक्टिव के बारे में सोचेंगे, तो ये पास्ट, क्योंकि सिंस मॉर्निंग हमारा टाइमिंग दिया हुआ है, हैड दिया हुआ है, यहाँ तो साइड सेड हमारा कंप्लीमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, लिख लिए आप लोग सभी? सर पास्ट परफेक्ट Yes. के बाद क्या लिखे? हाँ, इसमें आप भी देख रहे हो क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था वो। चलो अब इसे हम लोग समझते हैं ना। हमको वही लगा कि यार व्हाट्सएप तो कोई और लगता है,
जीजू ने जो पढ़ती थी उसका क्वेश्चन था, ये कहाँ तुम पूछ रहे हो? हम बड़ा कंफ्यूज थे, इसलिए तुम्हारा नंबर पूछे कि देखते हैं कौन पूछा था। चलो नंबर। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू शो वन और मोर देन वन, जब हमको नाउन को बताना हो कि यह एक है या एक से अधिक है, तो हमें इट नीड्स टू ऐड वर्ड्स, तो हमको कुछ वर्ड को ऐड करने की आवश्यकता पड़ती है। और वही जो ऐड हम लोग वर्ड ऐड करते हैं, दिस फॉर्म, वह जो फॉर्म कहलाता है, वह जो रूप कहलाता है, वह जो चेंज रूप कहलाता है, या फिर वह फॉर्म कहलाता है हमारा क्या, नंबर, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग वर्ड्स, एडिंग लेटर्स, वी कैन जज आइदर इट इज इन सिंगुलर और इन प्लूरल। तो हम लोग देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। इंग्लिश में 2 होता है, हिंदी में भी 2 होता है, बट संस्कृत में 3 होता है ना? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हाँ, संस्कृत में हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन जब हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे, सिर्फ इंग्लिश सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और हिंदी में एक वचन, बहुवचन। आगे आते हैं सिंगुलर नंबर। व्हेन नाउन डिनोट्स, एस लगा लेंगे, डिनोट्स वन इन नंबर, जब हमको पता चलेगा नंबर में कितने हैं, एक है, तब इसको हम मानेंगे सिंगुलर नंबर। अब इसी में क्या करेंगे, व्हेन नाउन डिनोट्स मोर देन वन, मोर देन वन, तो इट इज नोन एज प्लूरल नंबर। नंबर। Plural number. जी, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। Sir, 2 what नंबर is में the meaning of demote? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Demotes. डिनोट्स? मीन्स इंगित करना, या फिर संबोधित बोले करना तो हो सकता है। संकेत करना। ठीक है, इंडिकेट समझते हो ना? इंडिकेट बोले या पॉइंट आउट बोले या फिर एक्सप्रेस बोले, व्यक्त करना, इसका हिंदी लिख सकते हो व्यक्त करना। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. इसको आप लोग लिख लीजिएगा प्लूरल नंबर। व्हेन नाउन डिनोट्स मोर देन वन इन नंबर, इट इज नोन एज प्लूरल नंबर। और सारे में एस लगा लीजिएगा, बुक, पेन्स, बुक्स, स्कूल, बॉय, गर्ल्स। मतलब एक से ज्यादा। यस, मोर देन वन जब भी बताना है तो हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में वही क्या होगा, बालक मीन्स एक, बालको मीन्स 2 बालक, और बालका मीन्स 1 से 2 से अधिक बालक। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में हमारा टेंशन नहीं है, आराम से हम लोग, अगर बच्चा बोले तो 1 और बच्चे बोल दिए तो ढेर सारे, 1 से ज्यादा आप लोग। uses of plural number? वही तो वही व्हाट इज द यूजेज ऑफ व्हेन यू वांट टू शो मोर देन वन एनीथिंग, दैट कैन बी पर्सन, दैट कैन बी थिंग्स। जब एक वस्तु से ज्यादा हम किसी चीज को शो करना चाहते हैं, एक व्यक्ति से ज्यादा हम लोग शो करना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू प्रूव दैट मोर देन वन पर्सन वर प्रेजेंट, Sir, when it is in pair, when it is in pair. when it is in pair, Yes, sir. you can use plural. How, sir? How? Because there are 2 types of numbers only na English mein. But Done, you can sir. use, if you want to use a pair, you can mention here 2. You can also mention pair word. There is a pair of students are present, तो पेयर मीन्स वहां हो जाएगा, तो आप पेयर ही यूज, आप डायरेक्ट पेयर ही यूज कर लो, या फिर मेंशन कर दो 2। Done, sir. अगर आप सिंगुलर और प्लूरल के रूप में यूज करना चाहते हो, फिर तो आपको अब यही यूज करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा जो भी प्लूरल का वर्ड्स लगता हो। ठीक है, Sir, my work is done. Thanks, sir. ओके बाबू। So don't erase the plural number definition. ओके,
अब हम लोग जानेंगे कि प्लूरल हम लोग बनाते कैसे। बस थोड़ा ज्यादा नहीं, छोटा छोटा कुछ वर्ड्स वगैरह है, उसके हम अकॉर्डिंग हम लोग जान जाएंगे। सर रूल नहीं लिखवाएंगे? बस रूल ही लिखा रहे हैं बाबू। एक तरफ कर लो रूल, एक तरफ कर लो सिंगुलर, एक तरफ कर लो प्लूरल। ठीक है, पूरा लंबा चौड़ा लैंग्वेज में हम लोग नहीं लिखेंगे, कंसेप्ट पे हमको वर्क करना है ना। एक नंबर, बस कंसेप्ट को जानेंगे कैसे क्या होता है। अब ऐसे लिखेंगे वेन अ नंबर इज एंडिंग विथ एस एस एच सी एच देन वी कैन ऐड दिस नंबर इट मेक्स प्लूरल। सिर्फ लिखेंगे क्या, वाई एडिंग एस टू द सिंगुलर नंबर टू सिंगुलर फॉर्म। जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जनरली लिख सकते हैं। सामान्यतः हम लोग एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। बस बॉय गर्ल तो बॉयज गर्ल्स। टू नंबर, by adding yes to noun. Ending in sh, ch, s, es. सर जैसे मैंगो है तो मैंगो में तो ई एस लगाते हैं, तो उसके लास्ट में तो ना ही एस एच है, ना ही सी एच है, ना ही एस है, और ई एस भी नहीं है एक्स। मैंगो जो है ना, अब सारा आ रहा है, बस 2 मिनट वेट करो ना, सारा आ जाएगा। सारे हम लोग समझ जाएंगे। Sir, we can write now. ओके, जैसे जो आप पूछ रहे हैं ना मैंगो के बारे में, बता देते हैं। ओ के पहले यदि हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एस लगाते हैं। यदि ओ के पहले हमारा वॉवेल है तो हम लोग एस लगाते हैं। जैसे वीडियो, तो इस ओ के पहले हमारा ई है जो कि हमारा क्या है, वॉवेल, इसलिए हम लोग लगा दिए VIDEOES। सॉरी, मैंगो था ना, क्या हो गया सर? हाँ 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 उल्टा है। वॉवेल रहेगा तो सिर्फ एस लगाएंगे, हाँ हाँ हाँ, कॉन्सोनेंट रहेगा तो यस। यस यस, उल्टा हम कर दी। चलो 1 बाय 1 आ ही रहा है, इसके बाद आ ही जाएगा।
सर नंबर 2 रूल में एस के पहले क्या दिए हैं, माइनस का साइन? ना वो माइनस में हुआ, डैश हुआ जब सर, देखो हाइफन कोई भी है। वर्ड हमारा ये हाँ हो सर। रहा है ना, इसके पहले ये रहेगा, इसके पहले जो भी और भी लेटर्स रहेंगे लास्ट हमारा इससे होगा। देखो हम लोग ईएस लगाते हैं कब, जब नाउन हमारा कोई भी वैसा वर्ड है जो नाउन है उसके लास्ट में एंडिंग लास्ट हो रहा है क्या चीज से, एस एच से, सी एच से, एस से, एस से, एक्स, मतलब ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ये सारे वर्ड्स हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। डन सर। डन। अच्छा इसके आगे भी तो एक और लिखो, इसमें ऐड हो ही सकता है 3 नंबर। म्यूट योर माइक, क्या आवाज आ रहा है? आर्मी। सर सैंतीस। सर जर्नी में लगेगा IS। JURNE देखो, उसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाला नहीं 4 लगेगा। नंबर में। अब बाई के पहले आप देखो कॉन्सोनेंट है क्या, वॉवेल है ना, यस सर। जब वॉवेल रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। देख देते हैं। सर एंडिंग के बाद क्या है?
सर फॉलोवेड मतलब क्या होता है? फॉलोड मीन्स अनुसरण करना। सर वो आई जैसा लग रहा है सर, FO। FOLLOWED। सर वहाँ पे ग्लेयर कर रहा है इसलिए लग रहा है। अच्छा अच्छा, लिख लिए? नो सर। नो सर। सर और रूल होगा? हाँ हाँ, 4-5 गो और है। पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखा रहे हैं, बस एक टेबल में लिखा ले रहे हैं। आप आराम से टेबल को पढ़ सकते हो, तुरंत आपका रिवीजन हो सकता है। बुक में दिया जाता है पूरा एकदम लैंग्वेज में बना बना करके पूरा दे देता है, लंबा चौड़ा। हो गया? नो सर। नो सर। ओके। सर प्लीज वेट। सर वहाँ पे रे लिखा है क्या? हाँ, अरे भाई रे का रेज किरणें होती है ना। अब एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। जनरली बोले तो सामान्यतः किसी को कुछ नहीं आता है ना, उसको पुलर बनाना है इंग्लिश में क्या करता है, एस ऐड कर देता है ना। चलो एस लगा देंगे तो पुलर हो ही जाएगा। नहीं कुछ पता चल रहा है तो लास्ट में सिर्फ एस लगा दिया। एस हमारा क्या बताता है कि ये ढेर सारा है ना, मोर देन वन है। बॉय था बॉय के बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। आगे लेकिन अब जिसके पास जानकारी होती है उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ ईएस लगाना। तो जिसके लास्ट में क्या हो, SH हो, CH हो, S हो, ES हो और X हो। 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग लेटर के बारे में जानेंगे जिसके लास्ट में क्या हो, SH हो, CH हो, S हो, ES हो, X हो। इसमें हम लोग क्या लगा के ये पुलर बनाते हैं, ES लगाकर। बाई एडिंग ES को जोड़ करके टू नाउन्स में एंडिंग इन वैसा वर्ड जिसके लास्ट में SH CH S CS X हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये सिंगुलर है, SH है, CH है, S है, डबल S है, X है। तो ऐसा हमको जैसे ही वर्ड मिला हम लोग क्या किए, इसके लास्ट में हम लोग ES लगा दिए, ES लगा दिए, ES लगा दिए, ES लगा दिए, ES लगा दिए। ये सिर्फ हम बुश बोल रहे थे तो एक था, बैच बोल रहे थे 1 था, लेंस बोल रहे थे 1 था, 1 लेंस 1 बॉक्स 1 फॉक्स। लेकिन जैसे ही हम लोग ES लगा दिए, ES लगा दिए, ES लगा दिए, ES लगा दिए, ES, तो बहुत सारे बुशेज, बहुत सारे बैचेज, बहुत सारे लेंसेज, बहुत सारे बॉक्सेस, बहुत सारे फॉक्सेज। ठीक है। रूल नंबर 3 में इन नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट बाई के पहले क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। एक वैसा नाउन जो कॉन्सोनेंट
जिसके पहले आई, बाई के पहले जब कॉन्सोनेंट आता है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं, बाई को आई में बदल देते हैं। वाई विल बी चेंज इनटू आई, और उसके बाद जैसे हम लोग ईएस लगा के प्लुरल बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं, बाई की जगह पर क्या हो जाता है, आई, और लास्ट में ईएस। जैसे बाई है उसके पहले आर हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई है उसके पहले एल हमारा कॉन्सोनेंट है, तो बाई के पहले कॉन्सोनेंट लगाने के बाद हम लोग ईएस लगा के प्लुरल बना रहे हैं, ईएस लगा के प्लुरल बना रहे हैं, और यह जो बाई है उसको आई में कन्वर्ट कर रहे हैं, यह जो बाई है उसको हम लोग आई में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर साइड बाई को आई में कन्वर्ट करके लास्ट में ईएस लगा देते हैं। रूल नंबर 4, वही हमारा वाई है, इसके बाई के पहले यहाँ कंसोनेंट था, यहाँ बाई के पहले हमारा वॉवेल है। यदि वह लेटर वॉवेल को फॉलो कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। बाई है लास्ट में, इसके पहले वॉवेल है, बाई है इसके पहले वॉवेल है, बाई है इसके पहले वॉवेल। क्या किए, सिर्फ हम लोग एस लगाए, एस लगाए, एस लगाए। क्लियर होगा? सर कलेक्टिव नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं? कलेक्टिव नाउन को प्लुरल में चेंज कैसे करेंगे, वो तो ऑलरेडी जब कलेक्टिव हो ही गया तो वो सिंगुलर सर, कलेक्टिव पूरा वो एक समूह है ना। हाँ तो समूह है तो ऑलरेडी अपने आप में प्लुरल है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे पीपल, अगर हम पीपल बोलते हैं तो इसका पीपल्स थोड़ी ना कर सकते हैं, पीपल ही होगा। पुलिस हमारा, ये तो ऑलरेडी हमारा पुलिसेज नहीं कर सकते, पुलिस ही हो जाएगा, ठीक है ना। पब्लिक है तो ये हमारा क्या है, पब्लिक किसको बोलेंगे, एक थोड़ी ना होता है पब्लिक, पुलिस एक थोड़ी ना होता है, पीपल एक जहाँ पर एक व्यक्ति रहेगा उसको हम पीपल थोड़ी ना बोलेंगे। पीपल मीन्स होता है ढेर सारा, पुलिस मीन्स ढेर सारा लोग, पब्लिक मीन्स ढेर सारा, तो ये सब के पास पब्लिक्स नहीं होता, पुलिसेज नहीं होता, पीपल्स नहीं होता, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग कलेक्टिव नाम के बारे में जानेंगे। सर माय वर्क इज डन। ओके, मे आई इरेज? यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लिखने दीजिए इनको भी। थोड़ा सा फास्टली लिखेंगे, है ना, समझेंगे ज्यादा। जब आपको लिखने का समय मिले थोड़ा सा फास्टली लिखिए, रिवीजन जरूर कीजिए। सर इसमें कितने सारे रूल्स हैं? ज्यादा नहीं, 10-12 और क्या, कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो उसका कुछ रूल्स नहीं होता, सिर्फ उसको हम लोग याद करना होता है, रटना होता है कि हाँ इसका ऐसे होता है। जैसे ऑक्स का ऑक्सन, ऑक्स का ऐसे ऑक्सन, और चाइल्ड का क्या चाइल्ड का, चिल्ड्रन। चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन। जो एक ऐसे वर्ड है जिसका हम लोग ईएन लगा करके बनाते हैं, आर ईएन उसमें लग जाता है ना। यस सर। और भी कुछ है, फोर तक हुआ था ना, 5 नंबर बोलू गुलाम। सर इन नाउन होगा कि इफ होगा? इन हम लोग को ऐसा कुछ कंडीशन करके थोड़ी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कंसेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, तो ऐसे रहता तो ऐसे लिखते, इफ अ नाउन विच इज एंडिंग विथ ओ, उसके बाद देन बी मेकिंग प्लुरल बाय यूजिंग दिस टाइप्स, ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग तो बस कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं ताकि आप लोग को भी पढ़ने में आसानी हो, बहुत लंबा चौड़ा ना रहे, सिर्फ हम लोग पढ़े अच्छा एंडिंग होगा बाई से, एडिंग होगा ऐसे, बस हो गया। एंडिंग हम देखेंगे, एडिंग देखेंगे, यही तो हमारा कंसेप्ट है। सिंगुलर प्लुरल में यही ना कंसेप्ट होता है, एंडिंग क्या से हो रहा है तो एडिंग हमारा इससे है। ज्यादा अगर 4 लाइन का हम लिख देंगे तो आप लोग पहले पूरा पढ़ोगे ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद सिंपली कंसेप्ट पे हम लोग वर्क करते।
सारे टॉपिक हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, कोई लंबा चौड़ा मतलब पैराग्राफ लिखा रहे हैं वैसा ऐसा कुछ नहीं। सारे ग्रामर हम लोग कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, रट के नहीं। सर मैंगो में GOES लगेगा। हाँ, जो भी हमारा तो गो वर्ड में हो, भी लगेगा, गोज। वो verb हो गया ना, हम लोग नाउन नंबर पढ़ रहे हैं ना, verb नंबर थोड़ी ना पढ़ रहा है। यस सर। सर लास्ट में ओ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पहले नाउन है या वही तो कॉन्सोनेंट बोले है। ना कि इन नाउन एंडिंग ओ, अच्छा कॉन्सोनेंट कर देना, देन अ नाउन एंडिंग ओ, यानी कि जो नाउन एंड ओ से एंड वाउल भी तो कर दो, देन अ नाउन, देन अ नाउन एंडिंग वावल भी तो कर दो, एंडिंग इन वावल भी तो। सर कॉन्सोनेंट यहाँ करेंगे ना, देन नाउन एंडिंग कॉन्सोनेंट विथ हो, बाय एडिंग क्या करते हैं, यस। सर ये सर वो तो वोवेल है। हाँ वो तो वावेल है ना, तो ओ के पहले की बात कर रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट विथ हो, कॉन्सोनेंट विथ हो, है ना, कॉन्सोनेंट विथ हो, कॉन्सोनेंट विथ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यस लगाते हैं। इस प्रकार से आप लोग चाहो तो डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सर ओ का रूल तो हाँ ऊपर हेलो, लिखा दिए हैं। नहीं हाँ बोलो बाबू, क्या बोल रहे हो। सर तो उसमें सम नाउन एंडिंग ओ, तो उसको पता कैसे लगेगा कौन कौन नाउन को हम लोग एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, ओ से एंडिंग होने वाला। ऊपर में लिखे ईएस लगाना है, नीचे एस। ओ के पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट रहेगा ना, और यहाँ और यहाँ वॉवेल है, तो ऑलरेडी के पहले वॉवेल है, वॉवेल है, डबल डबल है ना वॉवेल, तो ऐसा कर लो, इसको वॉवेल वॉवेल से कनेक्ट कर लो इस प्रकार से, क्योंकि हमारा डबल ऑलरेडी वॉवेल है ना, यहाँ पर आपका सिंगल ओ है, तो यहाँ पे वॉवेल, यहाँ पर क्या करो, रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ पर लिख दो वॉवेल, समझने में थोड़ा सा आसानी होगी।
जानवी शर्मा बाबू कैमरा डाउन कीजिए। शर्मा जी। आर्यन बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आर्यन प्लीज शो योर वीडियो बाबू। आर्यन फोन लगाए पापा जी बाबू। ये शैतान आर्यन चला कहाँ गया? सर इसका एग्जांपल नहीं देंगे सिंगुलर प्लूरल। सर एडिंग के बिल्कुल, बाद सर क्या लिखा है सर? एडिंग ES A फॉर FE को B में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ES को ऐड कर देंगे। ठीक। सर साइड अगस्त्या बाबू कैमरा डाउन कीजिए। अगस्त्या देखो तो आराध्या का कितना अच्छा से आराम से बैठी हुई डॉक्टरनी की तरह। अगस्त्या बाबू कैमरा डाउन कीजिए। शैतान भाग गया, पीटते हैं उसको। कहाँ गए थे अगस्त्या? पानी पीने बाबू। कैमरा डाउन कीजिए अगस्त्या। शैतान है, बैठता नहीं है शांति से। सर भैया क्लास ही में नहीं थे, हाँ बाबू आगे रूम में चले गए थे। पिटाई खोजता। सर वो तो वैसे भी बिठा है। आर्यन योर वीडियो इज नॉट शोइंग। सर माय वर्क इज फिनिश्ड। रहने दीजिए सर, उसके पापा ही फोन करते हैं, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। कहाँ गया था आर्यन? सर माय वर्क इज डन। ओके, एक बार हमें इसको फिर से पुनः थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, है ना। देखिए, इन नाउन एंडिंग विथ ओ और उसके पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अगर है जी, वॉवेल हमारा ओ है, ओ के पहले कंसोनेंट ओ है, उसको पहले कंसोनेंट है, उसके लिए हम लोग ES लगाते हैं। लेकिन हमारा डबल वॉवेल आई, डबल ओ, EO या फिर ओ, उसके पहले क्या होना चाहिए? वॉवेल। तो सिर्फ हम लोग क्या लगाते हैं? एस 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 एस। इसमें तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। ओ के पहले कंसोनेंट रहेगा तो ES लगाएंगे, और ओ के पहले वॉवेल रहेगा तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? जैसे स्टूडियो, वीडियो, बम्बू, तो तीनों के पहले हमारा क्या है? वॉवेल है, तो सिर्फ हम लगाए एस। लेकिन हम लोग इसमें IE हो गया, डबल ओ हो गया, EO हो गया, IEO डबल ओ सिर्फ हो, तो सिर्फ हम लगाएंगे एस। नेक्स्ट, नाउन्स एंडिंग एफ, लास्ट में क्या होना चाहिए? एफ और FE। तो दोनों को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, एफ और FE को B में, और लास्ट में जैसे ES लगा के प्लूरल बना देते हैं। सेल्फ था
एफ था, एफ को कन्वर्ट कर दिए बी में और ये स्क्वायर कर दिए। एफ ही को कन्वर्ट कर दिए बी में, उसके बाद ये स्क्वायर कर दिए। एफ ही को कन्वर्ट कर दिए बी में, उसके बाद ये ऐड कर दिए, है ना। इरेज करें? सर यस सर। यस सर। यस सर। अब थोड़ा सा और बच्चा, 3 और। कितना हुआ? 7 8 अब 8 कर सर 7 हुआ 7 8 7 तक हुआ। 8 से होगा। ओके, 8 नंबर। Some nouns take both forms in the plural. तो कितना रूल है? सर साइड प्लीज। 10 तो बोले, बस 10 ही तो हम बताने वाले हैं आप लोग। सर 10 के बाद और भी रूल होता है? सर वहाँ पे सर प्लूरल लिखा है होता है, थोड़ा सा एडवांस वो सब होता है, वो सब आपको सर कंपटीशन रूल में पूछा सर प्लूरल लिखा हुआ है क्या सर? जाएगा। हाँ, सर थोड़ा सा समझाएंगे इसमें होगा क्या? अभी हम समझाएं आपको कहाँ, सिर्फ हमने तो अभी लिखा है, आपको समझाया हम थोड़ी ना, हम जा इसको छोड़ कर जा रहे हैं अभी। हम समझाना तो है ना हमको, लिखने के बाद नहीं समझाते हैं क्या? कोई छोड़ कर चले जाते हैं? जाते तो हैं। हाँ, छोड़ करके बिना समझाए हुए। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर सिंगुलर में? हुफ, HOOF, और उसके बाद है स्कार्फ। साइड प्लीज। जस्ट वेट। सर साइड प्लीज।
I have done. डन। No, sir. Use Last. the Sir, No, not 10 10 number. लास्ट वाले नंबर में ओके ओके ओके। सर 10 नंबर का लास्ट एग्जांपल में क्या लिखा है? गूज का गीज, GOOAC और उसका है GEESC। गोज मीन्स पता है ना क्या होता है? बत्तख। Done, sir. ओके, अब हम लोग सर समझते हैं। बत्तख का तो डक होता है। गूज भी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सम नाउन टेक बोथ फॉर, बोथ बोले तो एक ही नाउन का दो दो तरीके से प्लुरल बना सकते हैं। इन द प्लुरल, प्लुरल में क्या होगा? बोथ बोले तो दोनों होता है। आई एम ऑलरेडी साइट। वन नाउन का दो दो प्लुरल। हुफ का हम लोग सिर्फ एस लगा के बना सकते हैं और हुफ्स भी और भी एस लगाकर भी बना सकते हैं। एक और इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर लेते ना इसके पहले, इसी में नोट कर लेंगे। अगर एफ से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ, ठीक है ना, कुछ दो हमारे वैसे वर्ड हैं जिसमें सिर्फ हम लोग नोट में लेके जाना है या कहीं पर भी लिखे लेना। एफ को एस में कन्वर्ट करते हैं। एक हमारा होता है रूफ, जिसका कर देंगे रूफ्स, और एक हमारा वर्ड है चीप, जिसका होगा चिप्स। ROOFSCHIEFS। और एक होता है चेप, सेफ जिसे बोलते हैं, CHEFS। इसको थोड़ा सा इस बॉक्स में पैक कर लें। सर उसको भी लिख लें। हाँ, एफ को एस में कन्वर्ट करते हैं, दो तीन वर्ड ऐसा। रूफ को सिर्फ रूफ, सेफ को सेप्स, चिप का चिप्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन बोले तो उसमें दो दो वर्ड रहेगा और दोनों का दोनों नाउन रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, एस लगाते हैं किसमें, प्रिंसिपल वर्ड में। प्रिंसिपल बोले तो जो मेन वर्ड रहता है ना उसमें। तो जैसे सन इन लॉ, तो इन लॉ तो हमारा कॉमन है, इन लॉ हमारा कॉमन है। मेन वर्ड हमारा क्या है, सन, तो सन्स इन लॉ। मेन वर्ड हमारा क्या है, ब्रदर, तो ब्रदर्स इन लॉ। मेन वर्ड हमारा क्या है, रनर, तो रनर्स, ठीक है। और इरेगुलर वर्ड्स, इरेगुलर नाउन्स जो कि कोई ऐसा कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग सिर्फ रट सकते हैं, याद रख सकते हैं। टूथ का टीथ, वुमेन का वुमेन, सर इररेगुलर नाउन एक और बता दीजिए। हाँ, ऑक्स का ऑक्सेन, गुज का गिज। ये जो इरेगुलर नाउन्स होते हैं वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो बहुत सारे जितने सारे रूल्स हम सर लोग पढ़ रहे थे ना, इरेगुलर नाउन क्या होता है वो बता दीजिए। यानी कि सर ये जो जो कोई वर्ड्स है सर वो किसी भी चीज को जो कोई भी रूल रेगुलेशन पैटर्न को फॉलो नहीं करता उसी को बोलते हैं रेगुलर। रेगुलर वर्ब पढ़े थे ना हम लोग, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसके लास्ट में डी लगा हो, आई डी लगा हो, ईडी लगा हो। और इरेगुलर वर्ब जिसमें डी ईडी नहीं लगता, जैसे कम केम कम, गो बेंट गॉन, ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ डी आई डी ईडी है, वो होता है रेगुलर, जो एक रूल को फॉलो कर रहा है। जो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता उसको बोलते हैं इरेगुलर नाउन। जैसे टूथ का, दोनों का दोनों ये चेंज हो जाता है। कभी देखो ओ है तो उसका यहाँ पर ए है, उसका हमारा ई लग जाता है। कहीं चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो रहा है, ऑक्स है तो ऑक्स ईएन लग रहा है, गुज है तो गीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका कोई ये पैटर्न नहीं है, कोई रूल्स ऐसा कुछ नहीं है, बस इसका हम लोग को याद रखना है कि इसका ये प्लुरल होता है। गॉट इट? इतना ही रूल्स है सर? हाँ, रूल्स तो इतना ही है, बाकी थोड़ा सा डन सर। कंसेप्ट और भी, मतलब एक सीनियर लेवल पर जाता है तो हमारा का पूरा जब कॉमन एरर निकालते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग चलता है। मेनली हम आप लोग को जो याद करना होता है, जो हम लोग का वर्ड्स मिलता है, इसी प्रकार का मिलता है। तो होमवर्क दे दे अब क्या? यस सर, 7 minutes more. क्वेश्चन अराइजिंग नहीं करे? करिए सर, करिए, क्यों? करे ना? यस सर। पहले थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं। नहीं, रूल नहीं है। रूल्स आपका इतना ही। सर होमवर्क देंगे? होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ये चलेगा, क्विज कॉन्टेस्ट। कौन बनेगा करोड़पति, बनना है ना जी? करोड़पति लेकिन बनेगा, करोड़पति तो बनते ही नहीं। अरबपति बनना है अब। चलो, वर्ड मीनिंग लिखो। वर्ड मीनिंग याद किए थे जी आप लोग? सर ये होमवर्क है। सिनोनिम्स। सिनोनिम जिसको हम निकालना लोग है। याद करना है ना। बैड का इविल भी हो सकता है ना सर? बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता है। 2-3 देखिए, अभी 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 एक एक करो ना। सर ये होमवर्क है। यस, इसको याद करना। किसी को ब्यूटीफुल बोल सकते हो।
सर फिफ्थ में क्या है? एंगर, सर नंबर एंगर 3 का में एंगर का गॉर्जियस एराउज, का क्या लिखे हैं सेकंड स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड और उसके बाद ब्यूटीफुल समझने के लिए लिख दिया। शर्मा जी किससे गप कर रहे हैं बाबू? बहुत पीटेंगे इसको, गप करने में खाली लगी हुई है। सर इतना ही? हाँ काफी। होमवर्क सर। सर सर एंगर का क्या लिखा है सर? एराउज, सर इसका मतलब क्या हो सकता है? वही एंगर। गुस्सा, गुस्सा करना। ओके सर। सारा का हिंदी लिखना पड़ेगा। नो सर। नो नो सर। सर। सर तो एक एकदम सिंपल दे दिए, एक याद करने लग दे दिए। यस सर। सर क्राई मतलब भी रोना होता है, वीप मतलब भी रोना होता है। जी जी जी, ओके। देखते हैं बच्चों में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए तो हम दे दिए ना। चिल्लाना भी होता है। सर हाँ क्राई चिल्लाना, मतलब क्राई चिल्लाना में चिल्लाना जो होता है ना, वो चिल्लाना जो है बच्चा ही चिल्लाता है, हम आप नहीं चिल्लाइएगा। सर रोना भी तो होता है क्राई मतलब। जी जी जी, कराई, जिस कोई कराई कर रहा है ना तो तो उसका समझो पेन है, उस दर्द में है, तभी वो कराई कर रहा है, तो उसी को बोलेंगे। ये जो कराई होगा, एक होता है साउट में चिल्लाना, तो वह जो साउट चिल्लाना होता है, या फिर मेक ए नॉइज, हल्ला जो करना होता है, वो ऐसा ही किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो कराई तभी होगा जब बच्चा जैसे चिल्ला रहा है, तो क्या कर रहा है, अब उसको टॉफी चाहिए, इसलिए वो क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो आप उसे थोड़ा टॉफी दो तो चुप हो जाएगा। और डाउट है बाबू किसी को कहीं? नो सर। सर और आप No, लोग sir. वर्ड मीनिंग लिखते हो ना बाबू? यस सर। यस इसको सर। डायरी में लिखना, वर्ड मीनिंग को डायरी में लिखना, यस सर। चेक करेंगे। और नेक्स्ट क्लास है बाबू, टाइम पे आना, देखते हैं एक दिन सैटरडे का आप लोग क्लास लगाते हैं। ओके सर। आज आप लोग के पेरेंट्स से बात करते हैं, टाइम मिलवे नहीं करता बाबू, किसको क्लास करना नहीं करना सर है, और कुछ होमवर्क नहीं है? अटेंडेंस बनेगा ना, इंग्लिश के क्लास का भी अटेंडेंस बनेगा, तो पेरेंट्स से बात करेंगे, जिसको करना रहेगा कीजिएगा। सर मेरे फादर सर अभी सर हॉस्पिटल में है, तो सर उन्होंने बोला कि तुम कर ये सर को बोल देना। क्या हो गया बाबू पापा जी को? सर इमरजेंसी है सर, इसीलिए सर गए हॉस्पिटल। कौन बीमार हो गया बाबू?